Hello guys, how are you? Hope you all are doing well. Today topic is interest on capital. How can we calculate interest on capital? Interest on capital. Before calculation of interest on capital, keep the three important points. Keep the three important points. First, calculation interest on capital calculation on time basis. After taking consideration the withdrawal or addition of capital, always remember in your minds when you calculate interest on capital always calculated on the time basis after taking consideration the withdrawal or addition of capital. Second point, interest on capital always charge on opening capital minus, no minus is clear in here. Interest on capital always charge on opening capital. And third point is the very important. If given in the partnership deed, when interest on capital charge against profit, when given in deed, interest on capital charge against profit. In these situations, interest on capital is the part of profit and loss accounts, not profit loss appropriation accounts. When you read the question, always remember in your mind interest on capital charge against appropriation or against profit. In absence of any information, interest on capital always charge against appropriation, and means profit loss appropriation. But given in your deed, interest on capital charge against profit, then it is so in profit and loss accounts, not profit loss appropriation accounts. I hope all 3 points are clear in your minds. Next topic, interest on capital charge against different situations. Interest on capital charge against different situations. How many types of situations? 5 types of situation. First, when deed is silent. When deed is silent, then interest on capital not allowed. No entry pass regarding interest on capital. When deed say interest at a charge, means this point. Third important point. When deed say interest at a charge, charge means indirect expenses. When in deed it say interest on capital charge, charge means it is shown in profit and loss accounts. In other way,
it is not shown in profit and loss appropriation account. It is not a part of the profit and loss appropriation account. Third, withdraw and addition. Withdraw when deed is allowed. When deed is allowed, interest on capital, then you read percentage given or not. If percentage given, then interest on capital to be charged given percentage. If percentage is not given, then interest on capital to be charged at the rate of 6% per annum. Already I say in previous classes, fundamental of partnership, in absence of partnership deed. Okay. Next situations, when withdrew or addition, then calculation. Suppose that interest on capital given in deed, some amount withdrawn during the year, or some amount withdrawn during the year, or addition during the year. In these situations, interest on capital to be calculated by two methods, by general method or by product method. By general method and by product method. And very important point. First, given in second point, interest on capital always charged on opening capital. When opening capital is not given in the question, then firstly find out opening capital. ये ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैं अभी वह फॉर्मेट आपको बता दूं। क्लियर टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें अपने माइंड में रखने हैं। पहला क्या है, कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होगा वो उस समय टाइम बेसिस पर होता है, और टाइम बेसिस और ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब वह पार्टनर मिडिल द फाइनेंशियल ईयर कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, टाइम टू टाइम बीच में कैपिटल विड्रॉ करता है, ड्राइंग नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल विड्रॉ करता है या कैपिटल एडिशन करता है। यहां पर टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली उस टाइम पे टाइम का इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है जब ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ टाइम पर कैपिटल विड्रॉ किया हो। ध्यान रखिएगा, ड्राइंग ने कैपिटल विड्रॉ किया हो या कैपिटल इंट्रोड्यूस या एडिशन किया हो, तब यहां टाइम का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा जो चार्ज होता है ये ओपनिंग कैपिटल पे होता है। एंड थर्ड पॉइंट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर डीड में प्रोवाइड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज होगा अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, तो फिर वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता। सॉरी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, वो किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
यहां पर दो चीजें हैं, एक है अगर डीड साइलेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं होगी। अब कोई एंट्री नहीं होगी तो कैलकुलेशन होने करने का कोई सवाल नहीं है। क्लियर? व्हेन डीड से इंटरेस्ट एज ए चार्ज, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में दिखाया जाएगा, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। यहां से एक दूसरा पार्ट ये है, डीड में है, नहीं है तो डीड में है, डीड में है चार्ज नहीं है तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट माना जाएगा, और डीड में जो परसेंटेज दिया है इस परसेंटेज पर कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर परसेंटेज नहीं है तो फिर 6% पर एनम का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब आइए, ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये कैलकुलेशन है, ये दोनों पार्ट कैलकुलेशन है। अगर बीच में उसने अमाउंट विड्रॉ किया है, ऐसे एडिशन किया है, तो दो तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो जनरल मेथड से कर ले, समान मेथड जितने टाइम का है, जितने टाइम तक जितना कैपिटल है उतने टाइम तक का उसका इंटरेस्ट निकाल ले। अगर या दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड, जैसा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैलकुलेट किया था। और कैलकुलेशन दूसरा कैसे होगा, ये पहले ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करें। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देन आई प्रिपेयर हाउ कैन बी कैलकुलेटेड ओपनिंग कैपिटल। ये प्रोफार्मा है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फर्स्टली क्लोजिंग कैपिटल, given in question। Add first drawing, second interest on drawing, third withdrew capital, fourth share of profit and loss already given less। additional capital
share of profit and loss ओपनिंग कैपिटल। अब जो है ये देखिए, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, और यहां पर अगर सिचुएशन होगा तो ये शेयर ऑफ लॉस है। इस प्रोफार्मा के थ्रू आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, फिर एडिशनल अगर कैपिटल है एडिशनल पर करेंगे, और फिर अगर विड्रॉ किए हैं तो उतने टाइम का कैपिटल यहां से विड्रॉ करेंगे इंटरेस्ट, तब आपका कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, प्रोफार्मा आप लोगों ने लिख लिया। वीडियो को पॉज करके आपके जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसे आप नोट कर लें, मैं उसी क्वेश्चन को पॉइंट वाइज यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए, पहला क्या था आपका पॉइंट, पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन इन डीड, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। By net profit brought forward 20,000 to interest on capital A and B, sorry, to profit transferred to partners capital A and B. इंटरेस्ट इन दिस केस, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजंस नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा ही नहीं। जो भी प्रॉफिट है ये प्रॉफिट सीधे पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। आंसर नंबर 1, ए का हो गया 12,000, बी का हो गया 8,000। 3:2 गिवन इन क्वेश्चन, 20,000 को 3:2 में डिवाइड कर दिया, मतलब 20,000 ए का, 20,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 इक्वल टू 12,000, बी 20,000 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 8,000। यहां पर 20,000 ये हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड बिकॉज नॉट गिवन इन डीड। In the absence of deed, no interest on capital is allowed. Clear? फिर पॉज करिए और सेकंड क्वेश्चन को लिखिए। मैं सेकंड क्वेश्चन अब सॉल्व कर रहा हूं। Profit and loss appropriation account for the year ended
31 March 2019. आंसर नंबर 2। अब मैं एक इसका वर्किंग नोट बना रहा हूं। वर्किंग नोट मतलब, या वर्किंग नोट भी छोड़ दीजिए, यहां सीधे आ जाइए। बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ₹50,000 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल जोड़ लीजिए और जोड़कर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए, वो आएगा 30,000। प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू इन कैपिटल अकाउंट ए और बी। 10,000 10,000 दोनों मिलके 20,000, ये 20,000 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है सेकंड पॉइंट में, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। इफ गिवन इन द क्वेश्चन interest on capital charge, that means interest on capital to be shown in profit and loss accounts, not profit loss appropriation accounts. Before charge of the interest on capital, profit is 50,000. तो 50,000 में अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देंगे 30,000, तो एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हमारे पास कितना बच गया? 20,000। दोनों पार्टनर्स इक्वली हैं, या अगर डीड में नहीं भी दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं दिया है, तब भी हम इनको इक्वली मानेंगे। तो इनको 20,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो ये हो गया, एक का 10,000, दूसरे का 10,000। क्लियर? लेकिन एक चीज माइंड में रखिएगा, 99.99% केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, सब्जेक्ट टू इफ गिवन इन द क्वेश्चन interest on capital charge, word always remember in your mind, interest on capital charge given in your question, then interest on capital to be charged in profit and loss account, not profit loss appropriation accounts. अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, interest on capital allowed in deed। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में अलाउड है तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। डीड में चार्ज भी अलाउड है, लेकिन वहां चार्ज लिखा होगा, यहां पर डीड में चार्ज नहीं लिखा है, इसलिए किसका पार्ट हुआ? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये 2-3 सिचुएशन अराइज करता है। सफिशिएंट प्रॉफिट,
नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट। अब इन दो टॉपिक पर जो क्वेश्चन है वह कल के क्लास में आपको मिलेगा, और आई होप आपको यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एंड हो जाएगा और वो लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डालूंगा। ओके, थैंक यू।